हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं, हु इज डिस्कवर द डीएनए। द डिस्कवर ऑफ डीएनए एज द जेनेटिकल इनहेरिटेडी इज अ मटेरियल, बट there is a gene is localized of chromosome or the heredity as material was known to the scientists there earlier 12th century and there are 20th century, and there that gene is a segment of DNA because evidence from to work of Griffith of bacterial transformation. There is the bacterial transformation. The bacterium Streptococcus is a pneumonia and when to grow in the lab from to smooth colonies and then injected with the mice kill them. A mutant of the bacterium from their rough colonies and their harmless to the mice. In 1928 is a Friedrich Griffith is a found that if the smooth virulent from to the Streptococcus is killed and the mix with the harmless rough from the Streptococci to be later become a virulent killer. The change are transformation of the bacteria from to harmless the virulent term of bacteria transformation. In 1944, Everest McCoy, there's a MC McCordis extract DNA from to the virulent smooth Streptococcus as the mix with their non-virulent rough variety. The non-rough is a variety become a virulent and their smooth coat. This did not be happen when the DNA of the virulent from the digested with the enzyme. The DNASE and their mix. Then it is become clear the DNA was the transforming principle. And later, Hershey's and Chase is the 1952 use a T2 bacteriophages. T2 bacteriophages is the most important here as a virus which is infected bacteria from their experiments. They level to the protein coat of the virus with their radioactive isotope of sulfur 35S. When the virus was introduced into the bacteria, no radioactives was found inside the bacteria and the viral coat was left outside. When they labeled viral DNA with the 52p32R radioactives phosphorus radioactives was the found inside the bacteria. It has become clear that a new generation of the virus were produced inside bacteria because of viral DNA. Show in their figure. There is the most important for the microbiology student who is the BSc. There is the most important experiment for the mice. The S strain are encapsulated is an virulent. There is a mice is a dye, but R standing monocapsulate and the non-virulent there is the injected in the mice and the heat kill of virulent S strain in the mice. There is a most important experiment shown in this figure. This experiment goes wise to the D term is a Griffith bacterial transfer experiment. There is a heat kill of virulent strain pulse live, non-virulent and R strain. There is a mouse die and is a very dangerous but blood sample from a dead mouse is containing live virulent S strain. There is a Griffith bacterial transformation experiment. There is a most experiment for the all class and also the microbiology student is a VSc. And this experiment confirming that a DNA is a genetical material and genes are made of deoxyribonucleic acid or DNA. Deoxyribonucleic acid. There is confirmed to genetical material genes is made for a deoxyribonucleic acid is a DNA. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण बात आया है कि डीएनए के आनुवंशिक पदार्थों के रूप में खोज। देखिए, ये जो टॉपिक है वो बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उनमें ये आ जाता है स्ट्रेप्टोकोकाइस के जो एक्सपेरिमेंट की गई थी। कहते हैं 20वीं सदी में आरंभ में जो वैज्ञानिक ने इस बात की जानकारी थी कि क्रोमोसोम पर स्थित जीन्स आनुवंशिक पदार्थ से ग्रिफिथ के जीवाणु के रूपांतरण बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन पर किए गए कार्य से स्पष्ट हुआ कि जीन डीएनए के खंड होते हैं। तो जो ग्रिफ्थ ने बात कही थी वो कई मानने में जो था प्रूफनेस थी और सही बात थी। इसलिए इसमें जो एक्सपेरिमेंट की गई जीवाणु रूपांतरण जिसमें स्ट्रेप्टोकोकाइस और फिनोमोनिस जो है न्यूमोनिया से लिया गया था, यानी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियस में लिया गया था, जब जीवाणु प्रयोगशाला में सर्वित कराने पर चिकनी भित्ति वाली बैक्टीरिया की कॉलोनी यानी स्मूथ कॉलोनीज और स्ट्रेन का निर्माण करते हैं और चूहे में प्रविष्ट जो इंजेक्शन कराने जाने पर उन्हें मार देते हैं। इस जीवाणु का जो है एक उत्परिवर्तक खुरदुरी भित्ति वाली बैक्टीरिया की कॉलोनी का निर्माण करता है और ये चूहिया के लिए जो है हानिकारक भी था।
कहते हैं ये 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने पाया कि यदि स्ट्रेप्टोकोकस के चिकनी भित्ति वाले जो होते हैं विषाक्त प्रकार के जीवाणुओं को मारकर स्ट्रेप्टोकोकस की हानिकारक खुदरी जो है भित्ति वाले जीवाणु प्रकार से मिला दिया जाए तो ये हानिकारक प्रकार से विषमकता मृत्युकारक बन जाता है। बैक्टीरिया जो है एक वचन यानी बैक्टीरियम्स का हानिकारक प्रकार के हानिकारक रूपांतरण बैक्टीरियाइज रूपांतरण बैक्टीरियल इन्फॉर्मेशन कहलाता है। तो ये बात बहुत ज़रूरी था। जब इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने किया तो ये सारी बातों को नोट डाउन किया, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकाइस जो है फिनोमोनिया में से देखा गया था। और यही एक्सपेरिमेंट जब चूहे पे दर्शाया गया तो एस एस्टेन समृद्धि और अग्र की जो पहला पार्ट था उसमें जब इंजेक्टेड किया गया इंजेक्शन तो चूहा जो था यानी माइस जो था मर चुका था, लेकिन वही आर स्टेन असंतुष्ट और गुरुत किया गया तो वो चूहा जीवित था। जब एस स्टोन नष्ट कर देता है तो चूहिया फिर भी जीवित थी। तो ये एक्सपेरिमेंट का ही मानने में इम्पोर्टेंट था, साथ में इसको और भी आगे बढ़ाया गया। उसके बाद आगे लेकर गया जिसमें आप देख सकते हो कि एस स्टोन को नष्ट कर देने के पश्चात जब इंजेक्टेड किया गया तो चूहिया जो थी मर चुकी थी। इसका मतलब था इसका काफ़ी प्रभाव था देखने को मिला। तो यह हमें एस स्टोन जो थी चिकनी भित्ति वाला सुप्रति के लिए यूज़ किया गया था और आर स्टोन जो था असमित अनुग्रह के लिए किया गया था, यानी खुरदुरी के लिए ये किया गया था। ग्रीफ का जीवाणु का रूपांतरण प्रयोग बहुत ही मानने में इम्पोर्टेंट था और इसने कई बातों को जो है उजागर भी किया था। कहते हैं 1944 में एवरी जो है मिल्कोयोड्स और मैककॉर्डिस ने अग्र स्ट्रेप्टोकोकस से जो डीएनए निचोड़ व उसे अनुग्रह आर स्टोन की कॉलोनी में मिलाया था। अनुग्रह डीएनए युक्त प्रकार के अग्र चिकनी बन गया और यह जो उग्र प्रकार डीएनए के नाशी जो क्रमिक की डीएनएस यानी डीएनएस द्वारा जो है आत्मसात किए जाने के पश्चात मिलाने पर ऐसा नहीं हुआ। अंत यह स्पष्ट हो गया कि डीएनए रूपांतरकारी कारक था। इसके पश्चात 1952 में हर्शीज तथा चेज ने जो है T2 बैक्टीरियोफाजोस पे एक्सपेरिमेंट किया था। जीवाणुओं को संक्रमित करने वाला विषाणु को अपने प्रयोग में इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने विषाणुओं के जो प्रोटीन कोड को आवरण कोड जो है रेडियोधर्मी आइसोटोप के लेवल किया था और विषाणुओं को बैक्टीरिया में प्रविष्ट भी कराया गया था। तो बैक्टीरिया के अंदर कोई रेडियोधर्मी संकेत नहीं पाए गए थे क्योंकि विषाणु कोट आवरण जो थी बाहर की छूट गया था। जब उन्होंने विषाणु डीएनए को जो है 32P रेडियोधर्मी फास्फोरस से लेवल किया तो बैक्टीरिया के अंदर जो रेडियोधर्मिता पाई गई। इससे यह स्पष्ट हो गया कि विषाणु की नई पीढ़ियां जो है विषाणु डीएनए के कारण पैदा होती है। यानी ये बात बहुत क्लियर कर दिया कि डीएनए की वजह से ही जो विषाणु के जो पूर्वजों में जो है पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चली जाती है। तो ये एक्सपेरिमेंट कई मानने में इम्पोर्टेंट भी था और ज़रूरी भी था। इस प्रयोग ने डीएनए के अनुवांशिक पदार्थ होने और जीनों के डीएनए एंटीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल से निर्मित होने की पुष्टि भी कर दिया कि डीएनए जो है जीन जो है डीएनए से बना हुआ होता है और आनुवांशिक रूप में जो है जीवों में पाया जाता है। तो ये बातें एक बहुत बड़ा इतिहास में बहुत बड़ी खोज थी जिसे डीएनए हमारे समक्ष आया।